be a wonderful exposition for us. Before we start this, let me tell you this program is organized this year on online because of the COVID. And this is to pay our great respect to Dr. S.S. Antarkar. I basically came from a medical fraternity. I did not know the word philosophy at all, but we were fortunate to have at least 5 years of closeness with Dr. Antarkar, and who really told us what the philosophy is all about. So with these few words of my introduction, I request Dr. Minal Katarnikar. I think Dr. Minal Katarnikar does not need any introduction to most of our students. She's a professor of philosophy. She has been a not only national but the international speaker. Her specialization is in Jain epistemology, and her work on Paroksha Dhyan is amazing. She also has a very special interest in interfaith dialogue. Number of books have been published by her. Obviously, I cannot count the papers because it will go more than 100 papers. But what I want to say is that wonderful human being. Not only that, by this time, our 15 students have completed their PhD. Obviously, MPhil is always there, but PhD has been completed by our 15 students, mainly from the Jain stream. So Minal, like we all say that our sadhu sons are contributing a lot, but on the academic side, people like you, though you are not Jain, your contribution will be always remembered in our history. So over to you, Minalji. Thank you. Thank you, Dr. Bipin Doshi. Am I audible? Yes, very, very well. Thank you. Good morning to all. And it is a pleasure to address to this August gathering, which is all together for celebrating the second Professor Antarkar Memorial Lecture. Before I say anything about Professor Antarkar, let me take this opportunity to say a few words about all the attempts of our Jaina Academy Education and Research Center, which at present is in the able hands of Dr. Bipin Doshi. And for last more than 15 years, he has been contributing in all the senses to the development and growth of the center, as well as the activities in the Department of Philosophy. At the outset, again, that means this is something like a deviation from the subject, but I congratulate Dr. Bipin Doshi for two things. One, which we will all be listening to something little later, but initially for getting felicitated by the state government of Maharashtra for his enormous efforts for treating and controlling the COVID-19. He is a medical doctor, and in the last whole year, he had given his very valuable contribution as a medical doctor for the society. So congratulations, Dr. Bipin Doshi. And another thing which is very special for the department is that his idea of starting this Professor Antarkar Memorial Lecture. All the institutes get the founders and they remember their founders for this or that reason. But doing some very constructive activity in the honor of our founder is something very special. And this particular event, Professor Antarkar Memorial Lecture, literally serves that purpose of remembering our mentor, Professor Antarkar. I say our mentor because he was not only my teacher, he was a teacher of everyone who got in association with Jaina Academy Education and Research Center. Somewhere in 1995, there was a foundation of this center. And Professor Antarkar, the professor in philosophy, who was specialized and very much influenced by Western philosophy, joined the center as the director, first honorary director of this center.
He himself was not very sure whether he will be able to contribute to this center, because Jainism was not the subject of specialization for him. But his expertise in philosophy and his mastery over the philosophical method proved himself to be the best director ever in the world of Jain Academy. That means I will go even beyond saying that we have never learned Jainism as he taught us from anyone in the world. It is because his approach to study Jainism was very objective and rational. He respected the tradition. He learned the tradition with all the depths. But after learning the tradition and after getting familiar to the philosophical concepts and theories of Jainism, he just applied his analytic scissor to the Jaina principles, and he created a very different atmosphere. He created a very different temperament in the courses of Jaina Academy. I will say his invaluable contribution to the Jaina Academy is in articulating the syllabus for the certificate and diploma courses, which was done somewhere in 1996. And let me tell you that in last more than 25 years, we never felt a single need to revise or remold this syllabus even for a centimeter, because the essence that he learned and the very basic principle of Jainism that he grasped was something so unique that the courses actually proved to be a grand success. And over the last 25 years, I'm sure more than 10,000 students have taken benefit of these courses, and they also got inculcated into the interest of studying Jainism with all the dimensions. He, as a man, was a thorough gentleman, and he would never give any impression to the students that they are asking some nonsensical questions. Rather, he would never treat any question as a nonsense. He will take every question very seriously, and he would address to all the queries of the students with all the patience and equal generosity. So he was the student, he was the teacher of the students. He did every attempt to see to it that even the most ordinary student in the class is able to understand the curriculum properly and getting interest into the subject. But at the same time, he was a very harsh ringmaster, because he would never spare the students if they do not do some kind of self-study, or they start speaking something just like a casual talk. So he was a combination. He was a combination of a gentleman and very strict teacher. And we were trained under the able teachership of Professor Antarkar. For him, the essence of Jainism lies in Anekantavad. So this doctrine of a rational liberalism, non-dogmatism, and this doctrine of something like a manifoldness, or we can say the maturity of Jainism, was, according to him, the vital force of Jainism. And in the 21st century, which is the century of so many conflicts, so many tensions, we have to interpret, understand, and even take ahead this essential philosophy of Jainism. That is what we learn from him. And in my studies, record. as well as in my attempts to know Jainism, as well as practice Jainism,
I take these efforts to practice Anekantavad to the best of my level. This is the legacy of Professor Antarkar, and we are all very grateful to him for this. On the occasion of this second Professor Antarkar Memorial Lecture, I'm very happy that Dr. Anupam Jain has joined us as the main speaker, and I welcome him on behalf of the Jaina Academy Education and Research Center. Over to Kavita Shah. Thank you. Thank you, Minalji. I have learned from you, and we have. You are like a good teacher and the best teacher. We have learned Anekantavad from you, and the way you presented the Anekantavad, I have been never seen like that Anekantavad like that. Thank you very much. And now I'll give. I know today we have a 208 students. Till now we have learned many philosophies, science, geography. But I think I'm really grateful to Dr. Doshi that we have a mathematician today, and that is Jain mathematician. I think we have never gone to the Jain mathematics. Sir, everyone is excited to listen from the Anupam Jain. So over to you to just introduce him, and we will pass over to him. Yeah. Thank you, sir. फिर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। एक ही चीज कहना चाहता हूं कि नाउ विल बी कंटिन्यू मोर इन हिंदी, बिकॉज हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं दे हैव रिक्वेस्टेड अस टू स्पीक मोर इन हिंदी। मिनल जी का जो लेक्चर हमने सुना, एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर मिनल हैज बीन माय टीचर and still I call her Minal. You know, that's our relationship because of the age difference, that's all. But as Kavita has said, we are all students of Dr. Antarkar, Dr. Shubhada Joshi, and Dr. Minal Katarnikar. None of them were Jain, and yet the kind of Jainism we learned from them was so great. The word which Dr. Minal Katarnikar has used, I have noted down, analytical Caesar. I'll tell you, only philosophy, people from philosophy department can use this word, analytical Caesar of Dr. S.S. Antarkar. And the second thing which she talked about, Anekant, जिसके लिए एक शब्द का यूज किया गया, रेशनल लिबरलाइजेशन। ये भी शब्द कोई डॉक्टर भी नहीं बोल सकता है, कोई और ये फिलोसॉफी डिपार्टमेंट वाले ही बोल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मिनल जी। मैं डॉक्टर अनुपम जैन को वेलकम करता हूं। जैसे मैंने कहा कि MIT का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था फ्यू डेज बैक, आप तो सब जानते हैं MIT फ्रॉम USA। उस टाइम मैंने डॉक्टर अनुपम जैन को सुना और मुझे लगा कि नहीं, दिस इज एन वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो आई कॉन्टेक्टेड डॉक्टर अनुपम जैन एंड ही वाज काइंड इनफ टू एक्सेप्ट आवर इनविटेशन टू स्पीक ऑन सच एन, ये जो एक स्पेशल प्रोग्राम है डॉक्टर S.S. अंतरकर को एक मैं शब्द श्रद्धांजलि तो नहीं कहूंगा, क्योंकि ये व्यक्ति तो ऐसी होती है कि बस हमारे दिल में हमेशा रहती है। तो वेलकम डॉक्टर अनुपम जैन। डॉक्टर अनुपम जैन इज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। अभी एक बार प्रोफेसर है तो PhD गाइड है, MPhil गाइड है, मोर देन 30 years का एक्सपीरियंस है। बट ओवर एंड अबाउट दैट ही हैज बीन एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर वर्किंग ऑन जैन सब्जेक्ट्स, और खास करके कुंदकुंद ज्ञान विद्यापीठ के साथ काफी समय से डॉक्टर अनुपम जैन जुड़े हुए हैं। ऐसी तो 10-15 मातबर संस्थाएं हैं जैन स्टडीज की, जिसमें डॉक्टर अनुपम जैन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। 14 बुक्स एट हिज क्रेडिट, मोर देन 100 पेपर्स, मोर देन 25 अवार्ड्स। तो मैं एक mathematician, I was very poor at mathematics, and that's why I chose medicine. I never wanted to go to IIT. I was not fit enough to go to IIT. मेरा mathematics बहुत खराब था। लेकिन डॉक्टर अंतरकर ने एक बार मुझे कहा था, we were talking about Jain mathematics, Vedic mathematics. So he said, mathematics होता है, वो कभी वैदिक भी नहीं होता है, वो कभी जैन भी नहीं होता है। He was right in a way. तो जैन मैथमेटिक्स शब्द हम कैसे यूज कर सकते हैं? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। 1 + 1 is 2, whether it is Vedic or whether it is Jain or whether it is Buddhist, तो यही नहीं। आज जो बात करेंगे मेरे ख्याल से, ऑब्वियसली मुझे तो मालूम नहीं डॉक्टर अनुपम जी क्या बोलने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जैन आचार्यों ने ये मैथमेटिक्स के अंदर जो कंट्रीब्यूशन दिया है
और जब भी मैं डॉक्टर अनुपम जैन की कुछ किताबें पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम फर्स्ट टाइम एक्सपोज। जो मैंने आज 25 बरस से मैं जैन फिलोसॉफी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे पहली बार ऐसा लगा कि एक सब्जेक्ट मेरे लिए नया है। तो विद दिस फ्यू लिटिल इंट्रोडक्शन टू डॉक्टर अनुपम जैन, आई इनवाइट डॉक्टर अनुपम जैन टू स्टार्ट हिज लेक्चर। फिर से कहना चाहता हूँ, थोड़ा हिंदी में हम रखेंगे तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं 234 इज अ ब्यूटीफुल फिगर। नमस्कार, वेलकम डॉक्टर अनुपम जैन। Amod, I also welcome you. Son of Dr. S.S. Antarkar from USA also is with us. Welcome, Amod. Thank you. Over to Dr. Anupam Jain. थैंक यू प्रोफेसर दोषी, थैंक यू डॉक्टर अमोल, और हमारे साथ आज इस वेबिनार में जुड़े बहुत सारे गुजरात यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी और बहुत सारी जगहों से जो देश और विदेश से जुड़े हैं, उन सबसे मेरा सादर जय जिनेन्द्र। दो बातें प्रोफेसर दोषी ने अपने इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कह दी और मैं वहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। पहला, प्रोफेसर दोषी ने कहा कि आप हिंदी में बोले, मुझे खुशी है। अंग्रेजी में तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन हिंदी में अपने लोगों से बात करना, अपनी मातृभाषा में बात करना बड़ा सुखद होता है, क्योंकि दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएं, मातृभाषा में जब बात होती है तो अपनापन झलकता है। दूसरी बात प्रोफेसर दोषी ने कही कि मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स होती है, वो जैन और वैदिक कैसे। 2008 का एक मैं प्रसंग बता रहा हूं। विक्रम विश्वविद्यालय में इतिहास पर एक व्याख्यान देने के निमित्त से जब मैं गया, वो निश्चित रूप से जैन सब्जेक्ट्स पर सेमिनार था, और वहां ये बात उभर के आई कि ये जैन मैथमेटिक्स, जैन आयुर्वेद, जैन फिजिक्स, ये सब टर्मिनोलॉजी वेग है। मैंने वहां जो उत्तर दिया वही उत्तर आपको बता रहा हूं। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स है, 1 + 1 = 2 होता है, इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जो वेदों में गणित है उसको वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं, जो ग्रीक सिविलाइजेशन में मैथमेटिक्स है उसको ग्रीक मैथमेटिक्स कहते हैं, जो चाइना में मैथमेटिक्स डेवलप हुआ वो चाइनीज मैथमेटिक्स है, जो भारत में मैथमेटिक्स डेवलप किया गया, यानी भारतीयों ने जिस मैथमेटिक्स का विकास किया वो इंडियन मैथमेटिक्स है, यानी भारतीय गणित है। तो जैन आचार्यों ने जिस गणित का विकास किया, या जो गणित जैन आगम ग्रंथों में अंग और उपांग साहित्य में मूल और छेद सूत्र में मिलते हैं, षटखंडांगम, कषाय पावड़ और पंचास्तिकाय में मिलते हैं, वह जैन मैथमेटिक्स क्यों नहीं कहे जा सकते। अंग्रेजी जानने वाले लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, मैथमेटिक्स फाउंड इन जैन canonical literature are the mathematics which is developed by the Jain acharyas or Jain scholar is collectively known as Jain mathematics or Jain school of mathematics or Jaina school of Indian mathematics, क्योंकि सारे जैन आचार्य भारत में ही हुए हैं। इसलिए अगर क्षेत्र की दृष्टि से विचार किया जाए तो जैन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, जैन मैथमेटिक्स या जैन गणित भारतीय गणित का एक अंग है। मैं समझता हूं इतना विस्तार पर्याप्त है। दूसरी बात, जैसा अभी बात आई, जैन फिलॉसफी पढ़ाने वाले कई एक प्रोफेसर जिनकी अभी चर्चा यहां की गई वो सभी नॉन जैन थे। जैन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में भी ये बात काफी हद तक सही है, क्योंकि जैन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स ये संज्ञा सबसे पहले प्रोफेसर विभूति भूषण दत्त ने दी थी, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और बाद में जीवन के अंतिम समय में 10-15 वर्षों के लिए वो राजस्थान के पुष्कर में जाकर के स्वामी विद्यारण्य बन गए और वैदिक परंपरा में दीक्षित होकर के उन्होंने अपने जीवन में अध्यात्म का विकास किया। ऐसे प्रोफेसर विभूति भूषण दत्त ने 1929 में सबसे पहले जैना
स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स आर्टिकल लिखा जो कि बुलेटिन ऑफ कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी के 1929 के इशू में छपा है। और अगर हम थोड़ा पीछे चलते हैं तो मद्रास के प्रोफेसर एम रंगाचार्य ने जब गणित सार संग्रह का अनुवाद कार्य प्रारंभ किया, एम रंगाचार्य संस्कृत के प्रोफेसर थे, वो जैन नहीं थे, लेकिन मद्रास ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में जब उन्होंने महाचार्य महावीर कृत गणित सार संग्रह की प्रति ली और उन्होंने उसका संपादन किया, अनुवाद किया, तो दुनिया के जाने माने मैथमेटिक्स के हिस्टोरियन, गणित इतिहासज्ञ प्रोफेसर डेविड यूजेन स्मिथ जो न्यूयॉर्क के थे, उनको उन्होंने ये बात बताया। तो सबसे पहले रोम की एक कॉन्फ्रेंस में ऑन द गणित सार संग्रह ऑफ महावीराचार्य शीर्षक आलेख, या हम कहें एक शॉर्ट नोट, प्रोफेसर D.E. स्मिथ ने पेश किया था। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जैन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के प्योरली मैथमेटिशियन जो दार्शनिक है और दार्शनिक ग्रंथों में जो गणिताई है उसकी बात छोड़ दें, विशुद्ध रूप से गणितज्ञ जो आचार्य महावीर थे, 850 ईस्वी के लगभग का जो उनका काल है, उनके प्रथम ग्रंथ जो पहला जैन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का विशुद्ध रूप से ग्रंथ माना जा सकता है, वह गणित सार संग्रह का अनुवाद प्रोफेसर एम रंगाचार्य ने किया। उसका इंट्रोडक्शन प्रोफेसर डेविड यूजेन स्मिथ ने लिखा। इसके पहले भी 1899 में प्रोफेसर सुधाकर द्विवेदी जो बनारस के थे, उन्होंने त्रिशतिका नाम की आचार्य श्रीधर की एक कृति का संपादन किया, जो कि जैन गणित की कृति है, क्योंकि आचार्य श्रीधर स्वयं जैन थे। प्रारंभ में वो ब्राह्मण थे, लेकिन दक्षिण भारत में एक परंपरा है, कई ब्राह्मण विद्वान जीवन के परिवर्ती काल में जैन दर्शन के, जैन ग्रंथों के अध्ययन के बाद जैन परंपरा में दीक्षित हो गए, और उसी तरीके से आचार्य श्रीधर भी बाद में जैन हो गए और उन्होंने मंगलाचरण लिखा। नत्वाजिरम स्वविरचित पाठ्या गणितस्य सारमुद्धृत्य लोक व्यवहाराय प्रवक्षति श्रीधराचार्य। 1899 में यह ग्रंथ आ गया था, लेकिन वो जैन ग्रंथ है, इसकी किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि उसमें मंगलाचरण परिवर्तित कर दिया गया था। तो कहने का आशय ये है कि जैन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, ये नॉमेनक्लेचर प्रोफेसर बीबी दत्त ने दिया। इसके बारे में सबसे पहले लेखन प्रोफेसर डेविड यूजेन स्मिथ ने किया, और बाद में गणित सार संग्रह सबसे पहले तो 1912 में अंग्रेजी में छपा, और बाद में 1963 में इसका हिंदी ट्रांसलेशन आया, 2000 में कन्नड़ ट्रांसलेशन आया, और उसके बाद 2003 और 2007 में 2 बार इसका तेलुगु ट्रांसलेशन भी छपा। कुछ लोग बताते हैं इसका राजस्थानी ट्रांसलेशन भी, राजस्थानी में अनुवाद हुआ है, लेकिन अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है। लेकिन ये एक ब्रांच है जैन साहित्य की, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में इसके बारे में हम थोड़ा विचार करें तो हम पाते हैं कि दिगंबर परंपरा में रत्नखंड शावकाचार्य में समस्त साहित्य का विभाजन करते हुए, अनयोगवार विभाजन करते हुए कहा गया, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम, यानी प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग, इन 4 भागों में संपूर्ण साहित्य को विभाजित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत कर्ण शब्द जो है वो मैथमेटिक्स के लिए होता है। कर्ण जो है कर्मों के संदर्भ में आता है, लेकिन कर्मों का जब विवेचन किया जाता है, जो आप सब दर्शन के विद्यार्थी अधिकांश इसमें हैं, तो उन लोगों को मालूम है कि कर्म सिद्धांत जैन दर्शन की, जैन विद्वानों की, जैन आचार्यों की, या जैन दर्शन की एक बहुत महत्वपूर्ण और यूनिक चीज है, उसका कर्म सिद्धांत। तो कर्णान योग का साहित्य ये फुल ऑफ मैथमेटिक्स है, चाहे वो लोक की रचना का विषय हो या कर्म
का समेकित प्रभाव हो। अच्छे और बुरे जो हम कर्म करते हैं उसका हमारी आत्मा पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, कर्मों का आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा किस प्रकार होती है, इसका जो मैथमेटिक्स है वो यूनिक मैथमेटिक्स है। लेकिन थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स तो द्रव्यान योग में भी आती है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। श्वेतांबर परंपरा में भी अनुयोग द्वार सूत्र के अंदर हमें जो विभाजन मिलता है, अनुयोगवार विभाजन जो मिलता है, उसमें सबसे पहले द्रव्यान योग है और उसके बाद चरण कर्णान योग है, फिर हमारा गणितान योग है और फिर धर्म कर्णान योग है। तो गणितान योग, वहां तो नाम ही गणित दे दिया गया, तो गणितान योग फुल ऑफ मैथमेटिक्स है। मुंशी कन्हैयालाल जी कमल ने जब अनुयोगवार साहित्य का संकलन किया तो गणितान योग का जो खंड आया उसको जब मैंने देखा, प्रोफेसर एलसी जैन ने उसकी प्रस्तावना लिखी, तो मैंने देखा कि उसमें बहुत मैथमेटिक्स आया हुआ है। पीछे भी चलते हैं तो देखिए जम्बूदीप प्रज्ञप्ति के अंदर आया है, ले ही आओ गणित पिहाड़ाओ, लेखादिक किंतु गणित प्रधान कह दिया। यानी जो कलाएं हैं उनमें लिपि आदि कलाओं की चर्चा तो की है, लेकिन स्वयं आगम के अंदर ये बात आ गई कि ले आओ गणित पहाड़ाओ, यानी लेखादिक किंतु गणित प्रधान है। 72 कलाओं के विवेचन में गणित को एक विशेष महत्व दिया गया। आखिर जैन आचार्य जो कि आत्मा के कल्याण के लिए प्रवृत्त रहते हैं, वो दीक्षा इसलिए लेते हैं कि आत्मा का कल्याण किया जाए, आत्म साधन करें, आत्म चिंतन करें। उनको गणित में उलझने की क्या जरूरत पड़ गई, उनका क्या पर्पस था? तो पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि आगम ग्रंथों के अंदर जो गणित आया है वो बड़ी सहजता से आया है। क्यों आया है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है 4-5 मोटे मोटे उद्देश्य मैंने चिन्हित किए हैं पिछले 40 वर्षों में। मैं सन 80 से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, तो मुझे जो विषय आए, हो सकता है कुछ और मिल जाए। सबसे पहले जो हमारे लोक की रचना है, यानी हमारा जम्बूद्वीप, हमारा लवण समुद्र, धातकी खंड, ये तमाम सारे द्वीप और समुद्रों की जो श्रृंखला है, और जो हमारा जम्बूद्वीप है उसमें विजयार्ध पर्वत, आर्यखंड, म्लेच्छ खंड और जो विभिन्न क्षेत्र हैं, विदेहादि क्षेत्र हैं, उनका क्षेत्रफल, आकार और प्रकार वो कितने कंसिस्टेंट हैं, उनके वो कहाँ स्थित है, इसके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। वो गणितज्ञों का विषय भी नहीं है, वो तो भूगोल वालों की बात है। लेकिन मैथमेटिशियन के इंटरेस्ट की बात इतनी है कि यदि किसी क्षेत्र का, चाहे वो भरत क्षेत्र हो, चाहे आर्यखंड हो, चाहे म्लेच्छ खंड हो, उन सबका जब क्षेत्रफल है, पर्वतों की ऊंचाई है, आकार प्रकार है, उसके विवेचन में गणित का साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। साध्य नहीं है, लक्ष्य ये नहीं है, लेकिन उस लक्ष्य को बताने और समझाने के लिए एज ए टूल मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी बात, जैसा मैंने कर्म सिद्धांत के किया कि भाई हम कोई भी अच्छा या बुरा कर्म करते हैं तो उसका हमको फल भेजना पड़ता है, ये तो जैन दर्शन कहता है। तो वो कर्म किस प्रकार 8 कर्मों में विभक्त होते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय कर्मों में उनका कितना कितना अंश कैसे कैसे जाता है और उसका क्या समेकित प्रभाव होता है, ये सारी बात मैथमेटिक्स के माध्यम। क्यों? इसमें कॉम्बिनेट्रिक्स आ गई, जिसमें क्रमचय और संचय का विषय आ गया है। और तीसरी बात है कि जैन परंपरा में दीक्षाएं तो होंगी ही, मुनि दीक्षा होगी, आरिका दीक्षा होगी, साध्वी दीक्षा होगी, आचार्य पदारोहण होगा और मंदिरों की अंजन शलाका होगी। दिगंबर परंपरा में उसको पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कहते हैं। इसके लिए शुभ मुहूर्त निकालना पड़ेगा और मुहूर्त के लिए एस्ट्रोनॉमी चाहिए, ज्योतिर्विज्ञान चाहिए, और ज्योतिर्विज्ञान बिना गणित के हो ही नहीं सकता। यानी शुभ मुहूर्त और स्थान की प्राप्ति के लिए मैथमेटिक्स का एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से प्रयोग किया गया मंत्र। और उसके बाद है कि हमारे जो श्रावक हैं उनको जीवन यापन के लिए, संघ की व्यवस्था के लिए, मंदिर और स्थानकों के निर्माण के लिए, वास्तु को जानने के लिए, वास्तु की गणना के लिए भी मैथमेटिक्स की उपयोग होता है। तो इसके लिए लौकिक प्रकार का गणित चाहिए। और सबसे अंत में जो हमारे न्याय के ग्रंथ हैं, जैसे अष्टोषष्ठी है, जैसे प्रमेय कमल मार्तंड है, जैसे और बहुत से न्याय सार है, न्याय बिंदु सार है, ये सारे जो ग्रंथ हैं, न्याय के ग्रंथों की जो भाषा है वो लॉजिक की जो भाषा है
वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिकल लॉजिक एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिस पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। तो ये 4-5 उद्देश्य मैंने शुरू में अभी तक पढ़े हैं, लेकिन वास्तव में मैथमेटिक्स का क्या प्लेस है? एक प्लेस तो हमको गणितानुयोग समझ में आ गया कि 4 अनुयोगों में एक अनुयोग गणितानुयोग है। आज भारत के अंदर जब भी प्राचीन भारतीय गणित की चर्चा होती है तो लोग कहते हैं हमारे वेदांग ज्योतिष के अंदर एक श्लोक है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणस्ता तनु सर्वेदांगानाम गणितम मूर्धन स्थिति। और जब जैन गणित के अंदर हम इस तरीके की चीज टटोलने की कोशिश करते हैं तो हमें महावीराचार्य जिनकी मैंने बात करी, इनके गणित सार संग्रह के पहले अध्याय में 16वां श्लोक है, बहुभिर्विप्र प्रलापैक्यम त्रैलोक्य सचराचरे यत् किंचिदस्तु तत्सर्व गणितेन बिना नहीं। बहुत अधिक प्रलाप करने से क्या फायदा? तीनों लोक में जो चराचर वस्तुएं हैं उनमें वो सब गणित के बिना नहीं हो सकती, मतलब उनको गणित के बिना नहीं समझा जा सकता। मेरे कुछ मुमुक्षु भाई भी इसमें जुड़े होंगे जो अध्यात्म ही रुचि रखते हैं, बाकी सबके बोले कि भाई देखिए आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है, आत्मा के विकास का जो साहित्य है, समय सारा आदि जो ग्रंथ है वही हमारे पढ़ने की योग्य है, बाकी सब में हम अपना समय नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि समय बहुत कम है। तो मित्रों, टोडरमल जी ने जब गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, क्षपा सार की टीका लिखी, जिसको आप सम्यक दर्शन चंद्रिका टीका कहते हैं, तो उस टीका में लब्धिसार छपड़ा सार की टीका की शुरुआत में सामान्य प्रकरण के पृष्ठ 4 पर उन्होंने एक बात लिखी, बहुर्जे जीव संस्कृतादि के ज्ञान ते सहित हैं किंतु गणितादि के ज्ञान के अभाव थे मूल ग्रंथ या टीका विषय प्रवेश ना पावे, तिन भव्य जीवन के ताजे इन ग्रंथन की रचना करी। ये लब्धिसार की टीका की प्रस्तावना में बात लिखी है आचार्य टोडरमल ने, यानी आपको संस्कृत आदि का ज्ञान है लेकिन गणित के ज्ञान के अभाव में, यानी आपको यदि गणित का ज्ञान नहीं है तो आप मूल ग्रंथ या उनकी टीका साहित्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो उसके लिए गणित को बताना और समझाना जरूरी था, इसीलिए टोडरमल ने अर्थ संदृष्टि अधिकार नाम के सेक्शन पूरा जीवकान सम्यक दर्शन चंद्रिका टीका के अंदर उन्होंने जोड़ा। और आप देखें कि जब मैंने उस अर्थ संदृष्टि अधिकार को दिया तो उसमें इतनी सिंबॉलिज्म है, इतनी सहनानियां हैं, संकेत है, संख्यात के लिए, असंख्यात के लिए, अनंत के लिए और पल्ल के लिए, जग श्रेणी के लिए, जग प्रतर के लिए, कि आज हमारा माथा चकरा जाता है। हम अलजबरा में देखते हैं कि इज द एलिमेंट ऑफ सेट, सबसेट, सुपरसेट, इन सबके लिए सिंबल्स है, लेकिन हमारे आचार्यों ने भी बहुत अच्छी सिंबॉलिज्म का इस्तेमाल किया है और वो हमको गौरव होना चाहिए कि जो मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी है उसका भी हमारे पास काफी मसाला है और उससे क्रिप्टोलॉजी के लोग भी दिशा ले सकते हैं। तो लोग ये कहते हैं कि आज जैन मैथमेटिक्स पढ़ने से क्या फायदा, क्यों? उसमें इतिहास की बातें हैं, अरे एक्स ने इसका इन्वेंशन किया या वाई ने किया, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बिल्कुल बात मानता हूं। नंबर 1, पहली बात तो यह है कि यदि हमारे आचार्यों ने इतने उत्कृष्ट स्तर के गणित का आविष्कार किया, विकास किया, तो निश्चित रूप से वो जीनियस थे। जो लोग, जो हमारी आज की पीढ़ी हमारे आचार्यों के कृतित्व को इग्नोर करती है, उनको गौरव की अनुभूति होगी, पहली बात। और दूसरी, इतनी वैरायटी है हमारे यहाँ, अलजेब्रिक सिंबल है, अर्थमेटिक सिंबल है, ज्योमेट्रिकल सिंबल है और अलजबरा और ज्योमेट्री को मिक्स करके कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं, यानी बड़ी रेयर चीजों में भी उन सिंबॉलिज्म का उपयोग किया गया है। तो वो हमारे आगे के कामों में दिशा दे सकता है। आप देखें, जॉर्ज केंटर ने इन्फिनिटी का अध्ययन करते समय उनका माथा चकरा गया और उन्होंने कहा इनफाइनाइट पैराडॉक्स बने। हमारे मैथमेटिक्स के जो भाई होंगे वो इनफाइनाइट पैराडॉक्सेस को जानते हैं। अनंत का मामला आज भी एक पहेली के रूप में है, लेकिन स्थानांग सूत्र, अनुयोग द्वार सूत्र, तिलोय पद्धति, धवला आदि ग्रंथों में अनंतों का उसके उपयोग के आधार पर कई तरीके से विभाजन किया गया है। नामानंद से लेकर अनंतानंद तक है। एक
विस्तार अनंत, द्विविस्तार अनंत, त्रिविस्तार अनंत और जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अनंत भी हैं। 9 प्रकार के अनंत जो है उनके ग्रेडिंग के सिस्टम के आधार पर है और यूज आदि के आधार पर तो 11-11 प्रकार के अनंत बताए गए हैं। तो अनंतों का वर्गीकरण, अनंतों का उपयोग, डायडिक सीक्वेंसेस में अनंतों का उपयोग यह आज की समस्याओं के निदान में भी उपयोगी हो सकता है। आप देखें बहुत काम किया गया। सबसे पहले मैंने, लोग कहते हैं कि भाई बिल्कुल नई बात है बिल्कुल नई बात है इसलिए कि प्रचार नहीं हुआ है, लेकिन काम तो हुआ है। सबसे पहले मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं मैथमेटिकल कंटेंट इन द दिगंबर जैन टेक्स्ट ऑफ करदान योग। प्रोफेसर लक्ष्मी चंद्र जैन, देखिए शुरुआत में प्रोफेसर बीबी दत्त ने शुरुआत की, उसके बाद प्रोफेसर एएन सिंह ने डॉक्टर हीरालाल जैन के साथ मिल करके मैथमेटिक्स के काम को आगे बढ़ाया और प्रोफेसर लक्ष्मी चंद्र जी ने गणित सार संग्रह का हिंदी अनुवाद किया। मैथमेटिक्स ऑफ तिल्लोपण्णति लिखी, तिल्लोपण्णति का गणित लिखा। डॉक्टर हीरालाल रसिकलाल कापड़िया ने, जो हमारे बड़ौदा के थे, गुजरात के थे, उन्होंने बहुत काम किया और सिंह तिलक सूरी का जो गणित तिलक है उसका इंट्रोडक्शन, बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन लिखा। उस इंट्रोडक्शन में उस समय तक ज्ञात चाइना कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स का सुंदर सर्वे मिलता है। लेकिन प्रोफेसर एलसी जैन ने 1958 से शुरू करके 2010 तक बहुत काम, 50 साल जीवन के उन्होंने जैन गणित के लिए समर्पित किए और सिस्टम साइंसेस, कर्म एंटीक्विटी और मैथमेटिकल साइंसेस करके 8 वॉल्यूम मोटे मोटे लिखे और मैथमेटिकल कंटेंट इन दिगंबर जैन टेक्स्ट ऑफ करदान योग ग्रुप, ये 2 वॉल्यूम इनके बहुत बड़े हैं। इसमें तिलोपण्णति, त्रिलोक सार, जम्बूद्वीप परिणति संग्रह और लोक विभाग, इन 4 करदान योग के प्रतिनिधि ग्रंथों का मैथमेटिकल पार्ट जो था उसका अनुवाद किया, उसके नोट्स तैयार किए, उनके मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिए और डिटेल कॉम्पिटिटिव स्टडी दी। प्रोफेसर आरसी गुप्ता वर्तमान में जैन गणित के क्षेत्र में काफी कुछ काम कर रहे हैं। जैन ह्यूमैनिटीज प्रेस कलकत्ता, शायद आप लोगों को ऐसे भूपेंद्र कुमार का जानकारी हो, ब्राह्मी सोसाइटी चलाते थे कनाडा से, उन्होंने ये किताब वहां से छापी, एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स, एंशिएंट जैन मैथमेटिक्स पर, और इसमें उनके कई आर्टिकल जो गणित भारती में छपे थे वो है। मैंने 2019 में, यानी आप समझे 1.5 साल पहले, जैन दर्शन एवं गणित की किताब दी। उसका पर्पज केवल इतना है कि जैन गणित क्या है, क्यों है, कहाँ है, कैसे है, अब तक क्या काम हुआ है, कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनके अंदर मैथमेटिक्स पाई जाती है। क्यों कि समय सार में आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, समय सार में तो गणित नहीं मिलेगा, लेकिन पंचास्तिकाय में मिलेगा, क्योंकि जब पुद्गल को परिभाषित करते हैं, जब समय को परिभाषित करते हैं तो गणित की जरूरत पड़ जाती है। इसके अलावा कौन कौन सी पांडुलिपियां हैं जो आज भी नहीं छपी हैं, जितनी चीजें छप गई, गणित के जितने ग्रंथ छप गए हैं वो टोटल अवेलेबल के 25%, 75% मैथमेटिकल टेक्स्ट आज भी अनपब्लिश्ड है। और जो हमारे आगम ग्रंथ हैं उनके जो अनुवाद हुए हैं, जो उनकी व्याख्या हुई है, वो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के लोगों के, जैसा अभी प्रोफेसर दोषी ने 2 शब्दों का उल्लेख किया था। एक्चुअली जो जिस बैकग्राउंड का होता है उसकी टर्मिनोलॉजी उस व्यक्ति को समझ में आती है। जब हम खाणम की हमने 10वें अध्याय के 100वें सूत्र की गाथा की जब हमने व्याख्या देखी तो हमें इस बात का अनुभव हुआ। मैं आगे उसकी चर्चा करूंगा। दूसरी एक मैंने, तो मैंने इस जैन दर्शन और गणित में एक बहुत डिटेल्ड सर्वे दिया है, लगभग 40 पेजों में हमने बताया है अब तक पिछले 150 सालों में जैन मैथमेटिक्स पर कहाँ कहाँ क्या क्या छपा, हिंदी में क्या छपा, अंग्रेजी में क्या छपा, वो सब इसके अंदर आ गया है। क्योंकि जो आदमी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहे उसको कम से कम सर्वे में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, अर्धमांगी साहित्य में गणित करके, ये मतलब सीधी सी बात है, अंग और उपांग साहित्य के अंदर जो मैथमेटिक्स आई है उसका एक पूरा सर्वे हमने दिया है। और वो हमने जैन विश्व भारती लाडनू की एक प्रोजेक्ट के तहत ये काम किया। फिर श्रवण बेलगोला में हमने 3 व्याख्यान दिए थे, उन 3 व्याख्यानों का एक संकलन है। फिर मैथमेटिक्स इन जैनिज्म में जापान और
यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में दिए गए हमारे व्याख्यानों का संकलन है। महावीराचार्य की किताब में जो इनकी एकमात्र प्रकाशित कृति गणित सार संग्रह है, उसकी जो मैथमेटिक्स है उसकी कॉम्पिटिटिव स्टडी दी है। और इसी तरीके से आचार्य श्रीधर की एक कृति है जो कि ज्योतिर्ज्ञान विधि है, उसकी मैंने उसके मूल पाठ को इसमें प्रकाशित किया है। और फिर अगली है शून्य का आविष्कारक कौन। सारी दुनिया मानती है कि शून्य का आविष्कार जैनियों ने किया, नहीं, भारत ने किया है, भारत का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन भारत में किसका, किस भारतीय ने इसका कंट्रीब्यूशन किया? क्या जैन परंपरा का इसमें कोई योगदान है। सबसे पहले जैन ग्रंथों में ही शून्य का प्रयोग मिला है, लेकिन हम अपनी बात को बता नहीं पाए। नेक्स्ट, मैंने लगभग 1000 पृष्ठों में एक विस्तृत अध्ययन जो हमारे 40 वर्षों का निष्कर्ष है वो संकलित किया है, जैन परंपरा में गणित। ये भी अभी अप्रकाशित है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी इसको भी सामने लाएंगे। देखिए कहां कहां मिलता है। यूं जैन साहित्य की विशालता को सब स्वीकार करते हैं, लेकिन गणित की दृष्टि से कौन कौन से ग्रंथ हमारे विशेष उपयोगी हैं वो मैंने यहाँ लिस्ट आउट करने की कोशिश की है। दिगंबर परंपरा में षट्खंडागम, पंचास्तिकाय, तिलोपनिषद, सर्वार्थ सिद्धि, हरिवंश पुराण, धवला टीका, गोमट सार, त्रिलोक सार, जम्बूद्वीप परिणति संग्रह, लोय विभाग और सम्यक ज्ञान चंद्रिका। श्वेतांबर परंपरा के हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें सूर्य प्रज्ञप्ति सबसे प्राचीन ग्रंथ एस्ट्रोनॉमी का कहा जा सकता है, यानी जैन परंपरा का सूर्य प्रज्ञप्ति है, क्योंकि इस पर ग्रीक का कोई इफेक्ट नहीं है। सूर्य प्रज्ञप्ति, स्थानांग सूत्र जिसको ठाणम भी कहते हैं, भगवती सूत्र, अनुयोग द्वार सूत्र, उत्तराध्याय सूत्र, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, तत्वार्थाधिगम सूत्र भाष्य, विशेषावश्यक भाष्य, जीव समास और पंचसंग्रह। लेकिन हमारे कुछ आचार्य ऐसे हैं जिन्हें दर्शन से कोई मतलब नहीं। ये जो हमने कैनोनिकल टेक्स्ट की बात की, ये तो सब मूलतः दार्शनिक ग्रंथ हैं, लेकिन एज ए टूल इसमें मैथमेटिक्स आ गया है। लेकिन अब हम कुछ ऐसे आचार्यों की बात करते हैं, जैसे श्रीधर आचार्य 799 के, महावीराचार्य 850 ईस्वी के, और फिर राजादित्य, सिंह सूरी, ठक्कर फेरू, महिमोदय और हेमराज। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है, चंद्रन है, चेलू है, आनंद मुनि आनंद है, अरे उपाध्याय विनय विजय गणि का जो लोक प्रकाश है उसमें भी बहुत अधिक मैथमेटिकल है, लेकिन वो काफी बाद है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जैन साहित्य में भी हमने शॉर्ट करके जो हमारे रीडर्स हैं उनके लिए चीजें आसान करने की कोशिश की है कि भाई क्या क्या पढ़ना। लेकिन फिर मैं एक बार कहता हूं, इतनी जल्दी हमारे जैन साहित्य के और दर्शन के अध्येता ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि जैन दर्शन का अध्ययन बिना गणित के हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्या जैन दर्शन को समझने के लिए गणित का अध्ययन जरूरी है? ये बात जरा मुश्किल से स्वीकार करते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करना होगा। स्थानांग सूत्र के अंदर जो बहुत पहले लगभग 80-81 में मुझे जो गाथा मिल गई थी और जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, वो है स्थानांग सूत्र के 10वें अध्याय की 100वीं गाथा। परिकम्मम व्यवहारो 10 संघाणे परिणते तम जहां परिकम्मम व्यवहारो रज्जु राशि कला सवन्ने जावन तावन दिघड़ो वग्ग वग्गो विकप। और जब इसकी व्याख्या की गई, अभय देव सूर्य ने व्याख्या करी, तो उसमें वी को अलग कर दिया, कप्पू को अलग कर दिया, तो वी कल्पश्य, कप्पू का कल्पश्य बन गया, तो प्रकचिका व्यवहार बन गया, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि व्यवहार के अंदर 8 परिक्रम और 20 व्यवहारों में प्रकचिका व्यवहार पहले ही आ गया था। वास्तव में वो लिपिकार की त्रुटि थी, विकल्प था। विकल्प माने भंग है, विकल्प का मतलब कॉम्बिनोट्रिक्स है, तो वो विकल्प शब्द वी अलग और प्रकचिका अलग नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जब शीलांक ने इसकी टीका करी तो विषयों के क्रम में थोड़ा परिवर्तन कर दिया और पुद्गल का अध्ययन जो है गणितीय अध्ययन में जोड़ दिया। वास्तव में पुद्गल का अध्ययन फिजिक्स की चीज है, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बीच में कोई एयर टाइट कंपार्टमेंट नहीं। आज भारत में तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी ये मान रहा है कि क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। आज
जो साइंस ग्रेजुएट है वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है, वो फिलॉसफी भी पढ़ सकता है। ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं और ये सही भी है, क्योंकि विज्ञान और दर्शन परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। आर्ट फैकल्टी में दर्शन चला जाए और साइंस में साइंस चला जाए। जब मैं अभी कुछ साल पहले मणिपाल यूनिवर्सिटी गया तो वहां जो डायरेक्टर है प्रोफेसर सुंदरा, वो एमएससी फिजिक्स थे, लेकिन आज दर्शन के अंदर वो इतना आगे बढ़ गए कि वो डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी के हेड और वहां के डायरेक्टर हैं। तो मित्रों, ये गाथा ये बताने में सक्षम है कि संख्यान यानी संख्यान जैन दर्शन का एक स्पेसिफिक शब्द है जो गणित के लिए प्रयोग में आया है। जैन दर्शन में कई नए शब्द हैं, परिकंपम, व्यवहारो, रज्जु राशि, कला समन्वय। कला सवर्ण शब्द जो है वो भिन्न के लिए आया है। जावन तावंती यानी लीनियर इक्वेशन के लिए यावत तावत शब्द आया है। ये शब्द हमारी पहचान है। मैं यही बात निकली है तो ये भी बता दूं कि वक्षाली हस्तलिपि के अंदर भी यावत तावत शब्द आया है। वक्षाली हस्तलिपि में सिद्ध शब्द आया है। वक्षाली हस्तलिपि में सुंदरी शब्द आया है। ऐसे 6-7 शब्द है जो जैन परंपरा के पारिभाषिक शब्द हैं। ये हमें संकेत करते हैं। आज दुनिया में किसी को मालूम नहीं, क्योंकि वक्षाली हस्तलिपि का आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है। वो तो 3री शताब्दी की एक इनकम्प्लीट मैन्युस्क्रिप्ट है। किसने लिखी, कहाँ लिखी, किस लिए लिखी, उसका सारा सिस्टम जो है, स्ट्रक्चर जो है, वो पाटी गणित के हिसाब से है। 8 फंडामेंटल ऑपरेशंस और 20 व्यवहार उसमें आए हैं, लेकिन कौन उसका लेखक है किसी का पता नहीं। आप सबके लिए ये विचारणीय है कि वक्षाली हस्तलिपि का भाषा शास्त्रीय अध्ययन करें और देखें कि पूर्व शब्द, सिद्ध शब्द, यावत तावत शब्द और कला सवर्ण शब्द और सुंदरी शब्द, ये 5 शब्द तो मुझे याद आ गए तो मैंने आपको बता दिए। ये 5 शब्द वक्षाली हस्तलिपि में जो आए हैं वो कुछ इशारा करते हैं। उन इशारों को हमें समझना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी जैन आचार्य की लिखी हुई कोई, क्योंकि वो शारदा लिपि में लिखी हुई है, उसमें प्राकृत का भी प्रभाव है, तो वो कोई महत्वपूर्ण कृति हो, कोई निर्णय के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन संकेत जरूर मिलते हैं। किन किन विषयों की चर्चा, ये संख्यान के प्रकार की गाथा तो हो गई, लेकिन यदि हम एनालिसिस करते हैं तो हमें मिलता है कि हमारे यहाँ प्लेस वैल्यू सिस्टम है, मेंसुरेशन सिस्टम है, फ्रैक्शन है, ज्योमेट्री है, सॉलिड ज्योमेट्री है, सीक्वेंसेस है, सीरीज है, लॉगरिथमिक है, थ्योरी ऑफ इंडिसेस है, रूल ऑफ 3 है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, एक्सपोनेंशियल सिस्टम्स है, कॉम्बिनेटोरिक्स है, पार्टीशन थ्योरी है, फिगरेट नंबर्स है, ज्योमेट्री के ऊपर मिसलेनियस प्रॉब्लम है, सेट थ्योरी है, सिस्टम थ्योरी है, नंबर थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इनफिनिटी है। ये वो टॉपिक है जैन लिटरेचर के अंदर मिलते हैं। इससे आप अंदाज लगाएं, एस्ट्रोनॉमी भी है, कॉस्मोलॉजी भी है, ट्रांसफाइनाइट नंबर भी है, थ्योरी ऑफ मैटर भी है, क्योंकि पुद्गल की बात आ जाती है। आप चाहें तो उसको मैथमेटिक्स में मान लें, चाहे फिजिक्स में मान लें, लेकिन थ्योरी तो है। थ्योरी ऑफ मैटर हमारे यहाँ मिलती तो है, भगवती सूत्र में उठा के देख लें, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी मिलता है और थ्योरी ऑफ मैटर भी मिलता है। तो मित्रों, मेरा कहने का आशय ये है कि जैन 2-3 बढ़ा, जैन साहित्य के अंदर जो गणित है वो बहुत विस्तार है। अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि किन किन लोगों ने इस फील्ड में कंट्रीब्यूट किया, तो आप पाएंगे कि देखो, आगम ग्रंथ तो आगम है। यद्यपि अनुयोग द्वार सूत्र के बारे में सबको मालूम है कि वो आर्य रक्षित की कृति है, जो कि 1st सेंचुरी के हैं, यानी 5-7 बीसी से लेकर के, जैसा मैंने पढ़ा है, 5-7 बीसी से लेकर 1st सेंचुरी एडी में उनका पीरियड रहा। यानी अनुयोग द्वार का कंपाइलेशन पीरियड फर्स्ट हाफ ऑफ द 1st सेंचुरी रहा होगा, तो 50 एडी के आसपास रहा होगा। लेकिन गुणधर, कुंद का पंचास्तिका, मैंने पहले भी कहा कि समय सार में नहीं मिलेगा, प्रवचन सार में इतना नहीं मिलेगा, लेकिन आप पंचास्तिकाय के अंदर आप देखेंगे तो वहां अवक्तव्यता की भी बात आती है, वहां अनंतानंत की भी बात आती है। तो भैया, अनंत नहीं मालूम था तो अनंतानंत कहां से आ गया? अवक्तव्य जो है वो प्रोबेबिलिटी ही है। पीसी महलनबीस और जेबीएस हल्डाने ने अपने स्यादात सिस्टम ऑफ प्रेडिक्शन में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये इनिशियल फॉर्म है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। यानी अवक्तव्य, यानी जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकते, 0 और 1 के बीच में जिसकी सिचुएशन है,
प्रोबेबिलिटी है। और अब तो बात और आगे बढ़ गई, जो रफ सेट थ्योरी है, जो फजी मैथमेटिक्स है, वो सब अवक्तव्यता ही है, केवल शब्दावली का हेर फेर। ना अस्थि जो नहीं है, नास्ति नहीं है, उसके बीच की चीज है। और यही बात तो फजी के अंतर्गत आई है कि जो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट थ्योरी जब पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन जब ये फेल हो जाती है, रशेल पैराडॉक्स बड़ा फेमस प्रोडक्ट है मैथमेटिक्स की फील्ड में, तो वो वक्तव्यता की एंट्री होती है, जो फजी मैथमेटिक्स कहलाती है। मैंने इस प्रेजेंटेशन की जिसकी कॉपी में हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको हम उपलब्ध करा देंगे, इसमें लगभग 30-32 मैथमेटिशियन की बात की है। वैसे जब हमने सूक्ष्मता से अवलोकन किया तो आज लगभग 60 ऐसे आचार्य हैं जिनकी कृतियों में मैथमेटिक्स आई है। उनका सब्जेक्ट, उनकी कृति, उनका कृति और उनका काल, इन सबको हमने लिस्ट आउट किया है। मैं उसको पढ़ इसलिए नहीं रहा हूँ कि मेरी घड़ी बता रही है कि केवल 5-7 मिनट का ही समय शायद भी बचा है। नेक्स्ट। यस, आचार्य श्रीधर के बारे में यानी या प्योर मैथमेटिशियंस की बात करें तो इनकी केवल 2 कृतियां अभी तक सामने आई हैं। वो है पाटीगणित और दूसरी त्रिशतिका। त्रिशतिका छपी, पाटीगणित की एकमात्र जम्मू के रघुनाथ टेम्पल से एक प्रति मिली और उसको उन्होंने छाप दिया और उसी को प्रामाणिक माना जा रहा है। त्रिशतिका नाम की जो कृति मिली, उसको जो पब्लिश्ड है उसमें 180 श्लोक है। देखिए नाम से ही स्पष्ट है 300 श्लोक होने चाहिए। हमने भी उसकी सर्च की, सिंधिया ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ये हमारे इंदौर के पास में ही है, उज्जैन, वहां उसकी एक मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई। इसके अलावा बड़ौदा से एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली, हमने पाया उसमें 300 श्लोक हैं। और जो प्रतिलिपिकार था उसने शायद किसी पूर्वाग्रह के वशित होकर के जैन चिन्हों से युक्त उदाहरणों को ही हटा दिया। उसमें वृषभे संभवे पंचे करके जो उदाहरण था उसको हटा दिया और जो नत्वा जन्म सोर्चित पाठ्यगणित सार मुद्रित था उसकी जगह नत्वा शिवम कर दिया। देखिए मात्रा के हिसाब से कुछ गड़बड़ नहीं हुआ और विषय भी, लेकिन उस विषय को तो सुरक्षित रखना चाहिए। इतना अकादमिक ईमानदारी तो रहनी चाहिए। किसी भी लेखक की कृति में कोई भी परिवर्तन करना अकादमिक दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जाता और ये उचित भी नहीं है। ऐतिहासिक तथ्यों के से छेड़छाड़ तो बहुत ही गलत होती है। मैंने 60 से अधिक लोगों की कृतियों को संकलित किया है और ये पाया कि उनके अंदर न्यूनाधिक सामग्री है। अरे 20 मैन्युस्क्रिप्ट तो मैंने स्वयं बीकानेर से लेकर के बीकानेर, बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत, खंबात, मूडबद्री, श्रवण बेलगोला, इन स्थानों से इकट्ठा की हैं जिनकी प्रतिलिपियां, छाया प्रतियां मेरे पास हैं और वो आज तक नहीं छपी। इन श्रीधर की बात कर ले तो एक इनकी एक कृति और है ज्योतिर्ज्ञान विधि। इसके अंदर मुहूर्त आदि निकालने का पूरा विवरण है। एस्ट्रोनॉमी की बहुत अच्छी किताब है, 10 अध्यायों में है। ये पाटीगणित है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने छापी है। नेक्स्ट, ये त्रिशतिका है, देखिए सुधाकर द्विवेदी ने छापी है और ये त्रिशतिका बाद वाली जो नई दिल्ली से छपी है इसके अंदर में ही 180 ही श्लोक है। नेक्स्ट, जबकि ओरिजिनल ये पहली जो है आरा से मिली हुई मैन्युस्क्रिप्ट है और ये दूसरी वाली उज्जैन से, और ये जो तीसरी हम दिखा रहे हैं ये कानड़ी स्क्रिप्ट है 781। मूलबद्री के भट्टारक स्वामी जी ने मुझे बताया कि इसके अंदर 300 श्लोक हैं। और ये जब मैं गया तो मैं उस समय ज्यादा रंगीन फोटोग्राफी का इतना वो नहीं था, तो हम ब्लैक एंड व्हाइट लाए थे, ये हम आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, यह ज्योतिर्ज्ञान विधि, ये देखिए अब श्रीधर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लोग कहते हैं कि कुछ किया होगा, लेकिन श्रीधर ने अपनी एक बीजगणित नाम की किताब में एक विधि दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने, यानी द्विघात समीकरण को हल करने की रीति दी है। वो चतुराहत वर्ग समय रूपी पक्षक द्वयम गुणित, यानी जब x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये जो मेथड है वो श्रीधर का मेथड है। कुछ दिनों तक तो इसे स्कूल में उमर खयाम की विधि के रूप में पढ़ाया जाता रहा, क्योंकि श्रीधर की बीजगणित का के आधार पर उमर खयाम ने जब अपना जो लिखा वो तो सामने आ गया, लेकिन मूल खो गया। लेकिन आप तो ये भास्कराचार्य ने इस नियम को कोट किया है अपने बीजगणित में और वो छप चुका है। नेक्स्ट, स्टडीज बहुत हुई हैं, ये आप देखें, ये इसमें 7 हमने इनकी थीसिस के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट, ऐसे ही महावीराचार्य के ऊपर देखें, हाँ वहां
केवल पाटीगणित, त्रिशतिका और ज्योतिर्ज्ञान, इसके अलावा जो उनकी कृतियां हैं उनका कहीं कोई पता नहीं है। और ज्योतिर्ज्ञान विधि तो पता चल गई उसके बाद भी नहीं छप रही। और ये महावीराचार्य का गणित सार संग्रह है। गणित सार संग्रह इनकी छपी हुई कृति है, लेकिन इनकी ये चारों हम पहले बता चुके हैं। इनके ट्रांसलेशन जो हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ और तेलुगु ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट ये देखिए, एक मैन्युस्क्रिप्ट माधव चंद्र त्रैवेद्य की है। ये गणित सार संग्रह की इनकम्प्लीट मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में जयपुर और नागपुर दोनों जगह प्रिजर्व है, लेकिन जब हमने देखा तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है श्री वीतरागाय नमः 36 समेतेन सकल आठ। यानी माधव चंद्र त्रैवेद्य ने गणित सार संग्रह के आधार पर इस कृति को विकसित किया और उसमें 13 फार्मूले बीज गणित के और जोड़ दिए, क्योंकि गणित सार संग्रह में बीज गणित की बात नहीं है। नेक्स्ट, ये महावीराचार्य पे थोड़ा कम काम हुआ है, और एक्चुअली जितना भी ये जब मेरी किताब 1985 में आ गई थी उसके बाद कुछ लोगों ने कोशिश की है, लेकिन कोई नई चीज नहीं दे पाए। अभी मुझे फ्रांस की एक बहन ने, कैथरीन मोरिस सिंह ने ये बताया कि भाई जो पब्लिश्ड एडिशन है गणित सार संग्रह का, और जो मैन्युस्क्रिप्ट उसने ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में देखी और जो नोट्स एन सिंह के देखे, उसके आधार पर वो ये कहने की स्थिति में है कि इसमें बहुत सारी चीजें छूट गई हैं, उनका फिर से नया एडिशन आना चाहिए। क्यों कि जो पहला रंगाचार्य का एडिशन है था, उसी का ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ, उसी का ट्रांसलेशन कन्नड़ में हुआ, उसी का ट्रांसलेशन तेलुगु में हुआ, ओरिजिनल वर्क उसके बाद से नहीं हुआ है। नेक्स्ट, जैनाचार्यों का यूनिक कंट्रीब्यूशन आप देखें तो श्रीधर और महावीर दोनों ने एनसीआर का फार्मूला दिया है। नेक्स्ट, और ये देखें इसके अलावा अनइक्वल डिनोमिनेटर, देखिए सूर्य प्रज्ञप्ति के अंदर बहुत सारे फ्रैक्शंस को ट्रीट किया गया है, यानी 7/8 है, 8/7 है, 8/7 को 1 सही 1/8, 1 सही 1/7 लिख सकते हैं। 2 फ्रैक्शंस को जोड़ने का, उनको म्यूटेट करने का, ये तो दिया है। लेकिन इसका जो जनरल फार्मूला है, यानी अनइक्वल डिनोमिनेटर, असमान हरों को जोड़ने की जो रीति है, वो सबसे पहले हर सादृशीकरण के नाम से श्रीधर ने और महावीराचार्य ने निरुद्ध के नाम से दी है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, आप जानते हैं सारी दुनिया में इवन नंबर और ऑड नंबर के हिसाब चलता है, लेकिन जैनियों का क्लासिफिकेशन सिस्टम उससे बढ़िया है। उन्होंने कलयुग, द्वापर युग, त्रयुग और कृत युग करके 4 क्लासेस में दिया है, यानी ये बहुत अच्छी चीज है। फिर उसके बाद काउंटेबल, अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट के रूप में 3, 9, 9 का जो क्लासिफिकेशन है, और न केवल क्लासिफिकेशन है, उनमें परस्पर छोटे बड़े का और एक से दूसरे को कैसे प्राप्त किया जाए वो सारा डिटेल में दिया है। नेक्स्ट, मैं समझ रहा हूँ शायद टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं यहाँ फिनिश करूं? नहीं सर, यू कैन टेक 5 or 10 minutes more, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो बिग नंबर्स के बारे में चलिए मैं जल्दी से चीजों को समअप करता हूँ। एक बहुत जरूरी चीज बात है कि जैनियों में जो काउंटेबल नंबर है वो आज का बहुत बड़ा नंबर है। काउंटेबल नंबर्स के रूप में जो शीर्ष प्रहेलिका दी गई है वो 84 लाख की घात 28, ये हमारी शीर्ष प्रहेलिका है, और ये हमारे 2-3 ग्रंथों में मिलते हैं। एक तो वल्लभी वाचना और मातृ वाचना में इसमें थोड़ा अंतर है। तो शीर्ष प्रहेलिका का अनुयोग द्वार सूत्र में जो मान है वो आता 7.58 into 10⁻193, यानी 7.58 के बाद 193 शून्य लगा दें। और जो ज्योतिष करंडक में आया है वो उसका मान है 1.88 into 10⁻249, यानी 1.88 के बाद कितने 249 शून्य लगा ले। अब आप देखिए कि अगर 84 लाख की घात 36 का मान उनको निकालना आता था तो बिना शून्य के कैसे? डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट एविडेंस इस बात का है कि उनको शून्य का मान था, शून्य की जानकारी थी, वरना 84 लाख की घात 36 का मान वो कैसे निकालते? शून्य के साथ ऑपरेट करना उनको आता था। दिगंबर परंपरा में भी अगर हम देखें तो अचलात्म तो सबसे बड़ी संख्या है, और वो 84 लाख की घात 31 और 84 लाख
एक अचलात्मक का जो मान है वो तिलय परिणति के आधार पर 4.49 इंटू 10⁻149 आता है, और जो दूसरा जम्बूद्वीप परिणति संग्रह है उसका 4.49 इंटू 10⁻214 आता है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं के साथ डील करना ये जैनियों की एक विशेषता है। लेकिन हमारी कमजोरी ये रही है कि हमने उन चीजों को तवज्जो नहीं दी। आप देखें, मनुष्य पर्याप्त जीवों की संख्या जब अनियोग द्वार में बताई गई तो उन्होंने कहा 2⁵ इंटू 2⁵ और जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो यह भी लिखा कि 29 अंकों की संख्या मिलती है, लेकिन वो संख्या नहीं लिखी, संख्या नहीं मिली मुझे। जब उसकी टीका लिखी गई तो वो संख्या भी लिखी गई जिसमें 1000 के प्लेस पर 0 आया। इसके माने अनियोग द्वार लिखने वाले व्यक्ति को शून्य का ज्ञान था, तब तो वह 2⁵2⁵5 यानी 2⁵32 इंटू 2⁵64 इज इक्वल टू 2⁵96 यानी 2 का 2 में 96 बार गुणा करें तो 29 अंकों की संख्या आती है, और उसमें 1000 के प्लेस पर 0 आता है। ये बात बगैर इसके कैसे हो सकती? लोग कहते हैं कि कंबोडिया का जो 0 है, खमेरियन 0, उन्होंने सबसे पहले खमेर राजाओं ने शून्य का उपयोग किया। अरे भाई, वो तो 7वीं शताब्दी की बात है, हमारे यहाँ तो 1ली शताब्दी में अनियोग द्वार। और देखिए आचार्य, हमारे यहाँ एक लोय विभाग नाम का ग्रंथ है, लोय विभाग, और लोय विभाग जो ग्रंथ है वो किसका है? सिंगसूरी का। तो उन्होंने क्या लिखा है? पंचभ्य खलु शून्यभ्य परद्वे सप्तचाम्बरम एकम त्रीणि च रूपम च चक्रवालस्य पार्थवम। ये 4थे अध्याय का 56वां श्लोक है। और जो लोक विभाग छपा हुआ है, एक्चुअली जो वर्तमान में लोक विभाग है वो ओरिजिनल प्राकृत का संस्कृत ट्रांसलेशन, और संस्कृत ट्रांसलेशन का मैंने ये बताया है। लेकिन वो जो आचार्य है वो स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि मैंने तो प्राकृत से जो मूल था उसका भाषा रूपांतर किया है। और आप देखें, ये मैंने लंबी लिस्ट दी है कि इतने हर चैप्टर में 0 का आया है, हर चैप्टर में आया है। अरे एक छेपक हो सकता है, एक म्यूटेटेड हो सकता है, सारे की सारा तो नहीं हो सकता है, लेकिन पहले से लेकर के 11वें चैप्टर तक सब जगह इसके अंदर शून्य का प्रयोग किया गया है। इससे यह पता लगता है कि 5वीं शताब्दी में जब, क्योंकि इसका पीरियड 458 है और ये लोक विभाग ग्रंथ है, इसके अंदर शून्य का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया है। तो लेकिन ये बात हमने नहीं कही, ये बात हमने नहीं ढूंढी। जॉर्ज फ्रा ने जो यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ नंबर नाम की किताब लिखी है, जो लंदन से छपी है, उसके अंदर इसका पूरा डिटेल 2-3 पेज दिए हैं जॉर्ज फ्रा ने। और सबसे पहले ये क्रेडिट हमको दिया कि साहब ये जैनियों का कंट्रीब्यूशन है, सबसे पहले आया है ये सिद्ध उसका, हमारे आचार्य का। लेकिन इसके पहले भी अनियोग द्वार में और तिल्लोय परिणति के पहले, दूसरे, चौथे सभी अध्यायों में, और जो कंटेंट है, आचार्य यतिवृषभ ने लिखा है कि मैंने परंपरा से प्राप्त ज्ञान के आधार पर, दृष्टिवाद के आधार पर इस ग्रंथ की रचना करी है। और उसके अंदर, अरे भाई, जब 1 लाख योजन की बात बताएंगे, उसका परिधि निकालने की बात बताएंगे, तो शून्य का उपयोग तो होगा ही। तो 2री शताब्दी में तिल्लोय परिणति में शून्य का उपयोग मिलता है। 1ली शताब्दी के अनियोग द्वार सुर में परोक्ष उल्लेख मिलता है। मेरी तो मान्यता यह है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि 2⁻96 29 अंकों की संख्या बन रही है, और ये पूरी वर्ष पूरा उसमें गद्य भाग दिया है, और उसमें आप देख लें उन मनुष्य पर्याप्त जीवों की संख्या अगर 29 अंकों की संख्या है, भले उस संख्या को सबसे पहले अभयदेव ने आकर के लिखा 100,000 साल के बाद, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उनका इतना लिखना ही पर्याप्त है कि 29 अंकों की संख्या बनती है। तो 0 हमारा आविष्कार है, प्लेस वैल्यू सिस्टम हमारा आविष्कार है। जब हम ये कहते हैं
कि भव्य जीव राशि का ही ऐसा हो सकता है, और जो जिनेंद्र भगवान के वचनों पर आस्था नहीं रखते वो मिथ्या दृष्टि जीव राशि है। तो ये जो राशि शब्द है ये सेट का द्योतक है। तो राशि, ओग, संपात, पुंज ये सब धवला में आए हैं। बंधुओं, षट्खंडागम में शून्य का प्रयोग है, पंचास्तिकाय में अनंत का प्रयोग है, अनुयोग द्वार सूत्र के अंदर स्थानांग सूत्र में भी अनंतों की बात आई है, पतिलय परिणति में शून्य का प्रयोग किया गया है। बहुत बढ़िया नंबर सिस्टम, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, पार्टीशन थ्योरम, कॉम्बिनेटरिक्स में तो जैनियों की मास्टरी है। जनरल फार्मूले से लेकर के विभिन्न तरीकों से म्यूटेट करना, चाहे व्रतों की बात बताई गई हो, चाहे माला फेरने की बात बताई गई, सब में मैथमेटिक्स का ऐसे टूल इस्तेमाल किया गया है। और मैं कहना चाहूंगा कि लगभग 50 मैथमेटिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स की अभी हमारे पास जैन ग्रंथ भंडारों में रिपोर्ट है। महावीर आराधना केंद्र कोबा, शुद्ध भवन पूना और ऐसी संस्थाएं इस बारे में काफी काम कर रही हैं। दक्षिण में खजाना है कन्नड़ी स्क्रिप्ट में लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट का, लेकिन गुजरात और राजस्थान के अंदर भी बहुत सारी मैथमेटिकल मैन्युस्क्रिप्ट हैं। आज हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जैन दर्शन में निहित गणितीय तथ्यों का अध्ययन करें, उसको विकसित करें, जो अप्रकाशित पांडुलिपियां हैं उनका संग्रहण करें, जो कन्नड़ में है उनका देवनागरी में लिप्यांतरण कराएं, और जो मैथमेटिकल कंटेंट जैन आचार्यों ने विकसित किया है उसको एकेडमिक वर्ल्ड के सामने पूरे प्रमाण सहित, अगर मैं ये कह रहा हूं कि लोहे विभाग में शून्य का सबसे पहले उपयोग किया गया है, तो मुझे ये वर्ष और उसका ट्रांसलेशन देना पड़ेगा और ओपन करना पड़ेगा कि प्राकृत जानने वाला व्यक्ति कोई भी, वो जैन हो, जैनेतर हो, भारतीय हो, अमेरिकन हो, इंग्लैंड का हो, यूरोपियन हो, कोई भी हो, वो उसका अनुवाद कर ले। अगर वो इस बात से सहमत है कि हाँ है, इसमें प्रयोग है, तो जैन आचार्यों को उनके कर्तृत्व का श्रेय देना चाहिए। और जो परंपरागत ज्ञान भंडारों में पड़ा है, 20 पांडुलिपियां तो मेरे पास छाया प्रतियां हैं, 50 से ज्यादा की सूचना है, उन सबको एकत्र करके उनका अनुवाद करके अकादमिक समुदाय के सामने, एकेडमिक वर्ल्ड के सामने पेश करें, यह हमारी जिम्मेदारी है। और मैं, हमारे दोषी साहब ने कहा श्रद्धांजलि शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो तो हमारे दिल में बसे हैं, अंतरकर साहब। तो आज अंतरकर साहब की मेमोरी में आयोजित इस व्याख्यान का ये एक बहुत अच्छा सकारात्मक पहलू होगा, और ये हम सब लोगों की गुरुदक्षिणा भी होगी ऐसे विद्वान व्यक्ति के प्रति जिन्होंने हम सबको सिखाया है। तो हम लोग अपनी गुरुदक्षिणा उनको समर्पित करें और इस ग्रंथों का संरक्षण करें, अनुवाद करें। सभी से एक बार पुनः जय जिनेंद्र। Thank you very much, Dr. Ji. Sir, this is the first time we have learned that Ananta has so many types. It's 9 types of Anant. So we always think Anant is infinite, and that is the thing. So we are very much thankful to you to have just upgrade our knowledge, and now we can say that yeah, even infinite has the types. So thank you very much. I would like to call Sejal Shah Ji to thank you and just have a few words about this lecture. Dr. Sejal Shah. Ma'am, over to you. Yeah, thank you, Kavita bhai. प्रोफेसर अनुपम जी, आपने जो आज बात कही उसके लिए मैं आपका जितना धन्यवाद करूं शब्द कम पड़ जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने इस विषय को आपने आज प्रकाश डाला है। इस विषय पर मुझे लग रहा है कि आपकी अंतिम जो बात थी वहां से मैं शुरू करना चाहूंगी कि अगर गुरु के प्रति भाव है तो भाव को अगर आपको सचमुच अपने दिल में रखना है तो इस क्षेत्र में हमें काम करना बहुत ही आवश्यक है। आपके व्याख्यान में आपने दिगंबर और श्वेतांबर परंपराओं में कौन कौन सी कृतियों में कहाँ गणित की बात हुई है उसका एक पूरा हिस्ट्री का हमें आलेख दिया, और साथ ही पिछले 150 सालों में हमारे कितनी किताबें प्रकट हुए, कहाँ काम किया है उसका भी एक सर्वे आपने दिया हमें। तो आपने दोनों चीजों दी कि हमारे पूर्वकालीन परंपरा में जो काम हो गया है हमारे आचार्यों ने दिया है, और पिछले कुछ सालों में जो किताब के रूप में प्रकट हुआ है। तो ये दोनों डेटा आपने प्रस्तुत कर दिया ताकि अगर किसी अभ्यासु को इस विषय में आगे बढ़ना होगा तो वो जरूर कर सकते हैं। आपने एक अच्छी सी और बात कही कि जीरो की जो खोज जिसके बारे में बार बार भारत कहता है कि ये की है, बट उसका मूल हमारे जैन शास्त्रों में है।
और हम उनसे अनजान है, इसकी वजह से हम उसकी बात पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। आपने काउंटेबल नंबर की भी बात की कि काउंटेबल नंबर में भी गणित के क्षेत्र में भी जैनों का प्रदान रहा है, प्लेस वैल्यू सिस्टम में भी हमारा प्रदान रहा है, और बहुत सारी गाथाओं में ये बातों का उल्लेख मिलता है। वो डायरेक्ट प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो प्रमाण जब मिलता है तो उसके आधार पर हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए दो चीज जरूरी है, एक अभ्यास और एक जागृति, और तीसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है अनुपम जी जैन का मार्गदर्शन। तो मार्गदर्शन इस विशेष व्याख्यान के रूप में हम सबको प्राप्त हुआ है, और उन्होंने हमारे सामने डेटा दिया, इससे हमें एक रोड मैप भी मिला है। तो उस पर चलना न चलना वो तो हमारी इच्छा की बात है, किंतु उन्होंने कहा कि अगर प्रोफेसर अनंतकर जी की और हमारा भाव सच्चा है तो हम जरूर ये काम करेंगे। मैं चारों संस्था, जैन एकेडमी एजुकेशन रिसर्च सेंटर प्रमोशन ट्रस्ट, श्री झालावाड़ विशाल श्रीमाली स्थानकवासी जैन समाज, जैन साहित्य एकेडमी ट्रस्ट और जैन इंडिया फाउंडेशन, ये चारों संस्थाओं ने मिलकर आज का ये विशेष व्याख्यान जो आयोजित किया, इसके लिए सर आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। हम सारे पार्टिसिपेंट और सारे ट्रस्टीगण की ओर से आपके प्रति आभार और आनंद व्यक्त करती हूँ। साथ में मैं आभार व्यक्त करती हूँ अमोद अंतरकर जी का। अमोद जी, आप इस विशेष व्याख्यान में हाजिर रहे, इसके लिए हमें बहुत ही आनंद हुआ। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि जब भावना और तर्क साथ में होते हैं ना, तो उसका फल बहुत अच्छा आता है, और मैं मानती हूँ कि जरूर इसका फल अच्छा आएगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे एक बड़े ही स्ट्रिक्ट अध्यापक डॉक्टर विपिन भाई दोषी भी है, और वो ऐसा है करते हैं कि जब कोई काम शुरू होता है ना, उसके एक हफ्ते बाद वो सबको पूछते रहते हैं कि चलिए हुआ, किसने क्या किया, कुछ देखा कि नहीं। तो एक आयोजक के रूप में, एक उनका मेडिकल प्रोफेशन है इसके लिए भी, और एक स्ट्रिक्ट प्रोफेसर है इसलिए भी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसे नए नए विषय की और आप हमेशा सबको जागरूक करते हैं। विशेष आभार मैं कविता बेन और अमोल भाई का भी व्यक्त करूंगी, क्योंकि वो हमेशा हर कार्यक्रम की, जिसको कहते हैं एक डोर होते हैं, वो सबको जोड़ते हैं। अगर ऑडियंस को लाना है, सबको जमा करना है, डिग्निटी को भी संकलित करना है, तो वो काम दोनों बहुत ही अच्छी तरह कर देते हैं। तो उनके लिए, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। मैं मिदल कातरनीकर जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका शुरू में हमारे सामने रखी, और प्रोफेसर अनंतकर जी का बहुत ही एक अच्छा इंट्रोडक्शन भी हमें दिया। और साथ में मैं आभार व्यक्त करती हूँ आप सब सहभागियों का, क्योंकि आप सब सहभागी हैं तभी ऐसे कुछ कार्यक्रम करने का जोश हमारे मन में आता है, करने की इच्छा होती है। तो आप सबके प्रति भी अपना आभार और आनंद व्यक्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। Kavita, 2 minutes Yes, sir. for Amod Antarkar. If Amod would like to say a few words. Yes, sir. Sure. Namaskar. Thank you, Dr. Doshi. I really appreciate this annual memorial lecture in the honor of my loving father. This was very insightful today to know the rich history and the contribution of our scholars to mathematics. Very interesting and a very different sort of a lecture for me to understand the depth of the history of our scholars' contributions to mathematics. My father was obviously well versed in philosophy on both sides, on the Hindu philosophy front as well as on the Western philosophy front. I remember him teaching a bit of the Bhagavad Gita to me while he was here in the United States. So it was very insightful indeed to know the depths of Jainism, and the extensive research from Dr. Anupam Jain was very insightful and very enlightening in a way, to see how our scholars have contributed to the evolution of mathematics over the years. And I really appreciate Dr. Katarnikar's introduction to my father as well. It was a great memory, and how you brought it up and how he had cultivated, the coursework and so on. I was a teenager then, so I wasn't fully aware of the level of his contributions at that time. But as I grew and as I understood what he's contributing and how he's contributing to the field of Jainism,
I was indeed proud of my father's achievement here. And, to have this lecture every year in memory of my father, it makes me feel very proud, and it makes me, very thankful to your academy, thankful to the department, to Dr. Shubhada Joshi, Dr. Meenal Khatarnikar, and everybody else in the department, as well as in the Jain Academy, Dr. Bipin Joshi, and the rest of the members. And I really appreciate, very glad to be on this meeting, to have seen all of you, many of you for the first time. But it was very insightful, very, thoughtful to have this sort of a topic today. And it was very, very glad to be on this call. And I really appreciate this opportunity, and I really appreciate the fact that we are holding this seminar every year. And I would look forward to be present every year and helping any way I can to growing the academy. Thank you very much. Thank you. Thank Yes, you, Amar. Kavita. Yes. We have the national anthem. Sir, sure. Sir, would you like to talk 2 minutes about this? No, I think time is, but Okay. what I wanted to just convey to people is over here that how non-Jains have contributed in the various subjects. That is the lesson which many of us, recently I was reading a book on Jain art and architect, which is written by a German scholar, Julia, and she has written 1400 pages. So how the other scholars are contributing to Jain literature or Jain subjects is very important. Thank you very much again to all of you. We have Jana Gana Mana, please. I would request all of you, we are unmuting everyone. So let's have a Jana Gana Mana, our national anthem together. Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkal Banga Vindhya Himachal Yamuna Ganga Uttal Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashish Mange Gahe Tava Jaya Gatha Jana Gana मंगलदायक जय हे भारत भाग्य Vidhata Jaya विधाते Jaya जय Jaya जय जय Jaya जय Thank you. Thank you, everybody.